Hello dear students, this is lecture number 2 of trigonometric functions. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ trigonometric functions ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ प्लेन ਹੁੰਦਾ है वो चार हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ। दिस इज फर्स्ट quadrant, second, third and fourth। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ x ਐਕਸਿਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਧਰ y ਤਾਂ ਇੱਧਰ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ x ਨੈਗੇਟਿਵ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੈਗੇਟਿਵ y ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇਨ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ x will be positive and y will be negative। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਐਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੂ ਕਾਫੀ। ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ ਇਹ ਮਤਲਬ all positive। This is 0 and this is 90 degree or pi by 2 radian। यहाँ 90 डिग्री लिखा होगा, यहाँ pi by 2 radians लिखा होगा। This is 180 degree or pi radian। This is 270 degree or 3 pi upon 2 radian। This is 360 degree or 2 pi। ਹੁਣ 0 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, 70, 30 ਕੁਛ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ that will lie in first quadrant। and ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ in this quadrant theta is any angle, it will be less than or equals to 90 degree and greater than equals to 0। 0 to लेके 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। and in second quadrant 90 to 180, third quadrant is 180 to 270 and fourth quadrant 270 to 360। after तो A बन गया all positive and S for sine and the reciprocal of sine is cosecant। These two functions are positive, all the other functions are negative in the second quadrant। मतलब एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ cos theta in second quadrant ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ it is negative cos theta। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ 1/2 ਇਹ ਵੈਲਿਊ cos 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -1/2। 1/2 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ 60 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 90 + 60 ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ tan and reciprocal of tan is cot। These two functions are positive, all the other functions are negative in the third quadrant। fourth ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਤੇ cos ਦਾ reciprocal ਕਹਿੰਦਾ secant theta, ਇਹ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ sin 120 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ sin 120 डिग्री 10वीं क्लास तक ਆਪਾਂ नहीं पढ़ते,
इनू किवें लिखना है? साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या इनू आपां कह सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 इत्थे है। हुण एंगल पॉजिटिव आपां इधर नूं सपोज कीते एंटी क्लॉकवाइज, ये बेसिक फंडा है साडे कोल। इधर नूं आवांगे तो एंगल नैगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। इत्थे 0, इत्थे माइनस 90 डिग्री, इत्थे माइनस 180, इत्थे माइनस 270। क्लॉकवाइज एंगल नैगेटिव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। 180 दे विचों इत्थे 180 है, 60 माइनस करांगे ना पिछे रह गए 180 जो 60। तो क्वाड्रेंट किहड़ा बन गया ना, मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट है। वी आर इन सैकेंड क्वाड्रेंट। तो सैकेंड दे विच साइन की है पॉजिटिव, 180 हट जाएगा तो इसका आंसर आएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का आंसर साढ़े को होंदा है √3/2। हुण ये जो भी मैं किया है ये बारे थोड़ा जिहा दस दवां। जेकर 180 या 360 प्लस या माइनस थीटा आपां करते हैं तो साइन कैन चेंज। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे साइन चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि किहड़े क्वाड्रेंट च किहड़ा फंक्शन है। जिवें इनू ही मैं tan 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करता तो मैं इनू की लिखांगा tan, इसका मतलब थीटा इज इन सैकेंड क्वाड्रेंट। tan इनू की लिखांगे 180 माइनस 60। तो 180 माइनस करांगे सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच tan की है नैगेटिव। सो इसका आंसर क्या है ना, नेगेटिव tan 60 डिग्री। नेगेटिव tan 60 डिग्री का आंसर सानू पता √3 होंदा, ਇਹਦਾ आंसर आ जाना। जे 180 या 360 प्लस या माइनस थीटा करते हैं, जेकर 90 और 270 प्लस या माइनस थीटा करिए तो फिर साइन विल चेंज टू कोसाइन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा चेंज हो जाना। तो कॉस थीटा साइन थीटा tan कॉट ते कॉट थीटा tan दे विच, सीकेंट कोसीकेंट च ते कोसीकेंट सीकेंट दे विच चेंज हो जाएगा। इहदा की मतलब है, ए नोट पा के लिखना जरूर। एग्जाम्पल के तौर पर जिवें मैं साइन 120 नूं की लिखा 180 माइनस 60, पहला मैं की लिखन लगा है साइन 90 प्लस 30। वो मैं इसलिए नहीं क्योंकि अजे तक कॉन्सैप्ट नहीं दसिया। हुण जे मैं 90 प्लस करा तो साइन कदे च बदल जाएगा कॉस। और 90 प्लस करिए तो क्वाड्रेंट सैकेंड दे विच साइन पॉजिटिव होंदा। पहला साइन चेंज करना है। इहदे विच आपां नाल ये भी गल लिखनी साइन SIGN, ये साइन मतलब नैगेटिव पॉजिटिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜ, ਸਾਈਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ 90 ਪਲੱਸ ਆ, 90 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। साइन ने चेंज हो जाए ना, cos 30 बन गया है, ये 30 वैल्यू लाती। तो cos 30 की देख को लंदा √3/2। पॉजिटिव लिखने की लोड़ नहीं। देखो आंसर इदा भी √3/2। जे 180 माइनस 60 वो भी तो 120 होंदा है। जे 90 प्लस 30 ले ला वो भी, मतलब दो तरीकों के नाल आपां क्वेश्चनस नूं कर सकिया करांगे। इन्हां दे विच स्पैशल चीज़ यही वेखण वाली आ कि किहड़े क्वाड्रेंट च किहड़ा फंक्शन पॉजिटिव होएगा। 180 माइनस करोगे तो सैकेंड क्वाड्रेंट,
ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਜਾਂ 270 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 270 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਜਾਂ 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, 360 और 2 पाई 3 पाई बाय 2 अपॉन माइनस थीटा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट बन जाया करना। हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के सवाल करांगे, ये सारा समझ के कॉन्सैप्ट कि किवें किवें ये यूज करना है, किद्दां इहदी लोड़ पैगी। लोड़ तो वेखते पे आप कि स्टैंडर्ड तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल जो फाइंड आउट करने आ, जिवें हुण तक 90 डिग्री तक पता ही, हुण साइन 120 कह दें 150 कह दें, इस तो अगे दियां वैल्यूज़ कह दें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3.2 एक्सरसाइज दे विच पहला सम है cos x इज इक्वल्स टू -1/2 and x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। बाकी सारे फंक्शंस जेडे 5 बचते आ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी जेडे रहिंदे आ उन्हां दीयां वैल्यूज फाइंड आउट करनियां। इन्हां लई सब तो आसान तरीका मैथड 2-3 ने, ये एंगल x मान लिया करना हमेशा, दिस इज द बेस्ट मैथड। अदरवाइज कॉस तो साइन फाइंड करो, वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होएगा। हुण क्योंकि कॉस ये लिख लिया करना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इधर लिख लो। एंड कॉस इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ गया 1, हाइपोटेन्यूज आ गया साढ़े कोल 2। एक्चुअल दे विच तां 2 दे मल्टीपल आउणगे, मतलब 2x आप लिख सकते हैं, इतने x एंगल दिता है, 2y लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर एडी लोड़ नहीं। तो फिर परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर की आ जाना साढ़े कोल 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर रूट 3। ये सिर्फ फाइंड करने की लोड़ है। तो फिर साइन एक्स वो की निकल आएगा, पहली गल थर्ड क्वाड्रेंट दे विच साइन की होएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन पा देना। तो साइन की होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3/2। tan x फाइंड करोगे, tan x की होता परपेंडिकुलर ओवर बेस स्क्वायर रूट 3/2, क्योंकि पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट दे विच। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, T फॉर tan, tan एंड cot दोनों ही थर्ड दे विच पॉजिटिव होंदे, पॉजिटिव आंसर देता। cot x tan दा रेसिप्रोकल होंदा ते की आ जाना 2/√3। secant x वो किदा रेसिप्रोकल होंदा cos दा, वो की आ जाना 2/1 यानी कि 2 ही लिख देना। ते थर्ड क्वाड्रेंट दे विच secant की होएगा नेगेटिव, किहड़े सिर्फ tan ते cot ही पॉजिटिव होने। वो secant x इहदा आंसर की आ जाना 2/√3, तो इहदा भी आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच थर्ड क्वाड्रेंट दे विच ये साडे कोल आ जाना नेगेटिव, सीकेंट एंड कोसीकेंट आल्सो। तो पहले 5 सवाल बिल्कुल सेम ने। 6th सम आपां करांगे, वो की है साइन 765 डिग्री। 765 देखो इत्थे साडे कोल आया 0, 360, 720। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾइन ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 720 प्लस 45 डिग्री, ਤੇ 720 ਇੱਥੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣ 180 या 360, जिवें मैं दसिया 180 या 360 मतलब 2 पाई, इन्हां च प्लस माइनस करिए तो फंक्शन चेंज नहीं। इत्थे वालियां वैल्यूज जिहड़ियां ने जिवें π/2, 3π/2,
5π/2 7π/2 ਇਹਨਾਂ 'ਚ प्लस माइनस करांगे तो साइन कॉस बदलेगा ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ सेम ही रह जाना ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव sin 45 ਇਹਦਾ आंसर आ जाना तो sin 45 1/√2 ये ਹੁੰਦਾ है ये आ गया आंसर। नेक्स्ट ਇਹਦਾ 8th सम tan 19π/3 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ tan 19 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 6 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1 ਕੈਰੀ ਬਚੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ 6π + π/3 6 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਹ 18 + 1 ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 0π ਹੈ 2π 4π ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਣਾ tan π/3 tan π/3 means tan 60 degree तो इसका आंसर कितना √3 this will be your answer। next जेकर नेगेटिव आ जाता है sin -11π/3 ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ sin of -θ is equals to -sin θ but cos of -θ is equals to cos θ इदां ही tan of -θ -tan θ ते cot क्योंकि cot cos over sin है sin जो नेगेटिव बाहर आ जाना तो वो बाकी सारे ये अकॉर्डिंग sin over cos tan बन जाएगा तो tan ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ cot ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਕੈਂਟ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ sin 11π/3 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿव साइन ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ π + π/3 ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4π ਲਿਖ ਲਾਂ 4π ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ -4π 12π -π 11π मतलब ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4π ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਐਂਗਲ जे प्लस करते फिर तो अगे जाना माइनस किया तो फिर आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ के पॉजिटिव की होंगे कॉस ते सैक साइन तो नैगेटिव होंगे नैगेटिव इतने पहला लगा एक नैगेटिव होर आ जाना तो नैगेटिव की हो जाएगा पॉजिटिव नैगेटिव साइन हो गए ये आ जाना sin π/3 यानी कि पॉजिटिव sin π/3 यानी कि sin 60 √3/2 ये आंसर आ जाना ये पॉजिटिव लिखने की भी लोड़ नहीं सो ये एक्सरसाइज अपनी जी सैकेंड वो सारे क्वेश्चन मैं खुद ही करवा दिते तो थर्ड वास्ते मैं थोड़ा जहा काम तुहानूं करवा के तो फार्मूले मैं थोड़े जे लिख देना है ये PDF भी मैं तुहानूं प्रोवाइड कर देवांगा फार्मूलास से एक स्पैशल चीज़ मेरे दिमाग के जी मैं हर साल बच्चों को करवाना है ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन जदों भी तुसीं करना है वैसे तो सारा ही मैथ के मैं फॉर्मूले जिन्ने भी हाँ चैप्टर वाइज वो लिखते जाना है सारे मैथ के फॉर्मूले एक डायरी लै लैनी आ 25-30-40 रुपए की और डायरी दे विच सारे फॉर्मूले नाल नोट करते जाना क्योंकि आप ज्यों अगे चलते जावांगे पिछले फॉर्मूले भुलते जाएंगे तुहानूं जे उन्होंने लर्न करना है चंगे तरीके दे नाल एक डायरी दे विच लिखते जाओ तो जदों भी लोड़ पे पिछे वेख लेना
ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ AB ਫਾਰਮੂਲੇ। AB ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ sin A plus B ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ sin A cos B plus cos A sin B। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈਨ 45 ਮਾਈਨਸ 30 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 15। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆ ਗਿਆ 45, ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਮ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਈਨ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਨ 45 cos 30 ਮਾਈਨਸ cos 45 sin 30। sin 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। सो 2√2 एलसीएम आ जाना 2√2 ऊपर आ जाएगा √3 - 1। सो दिस विल बी योर आंसर। साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये लर्न नहीं करनी, इनू एक पैटर्न दे नाल सॉल्व करना है। इदा आपां नूं लोड पिया करें। सैकेंड फॉर्मूला की लर्न करना है cos A + B। वो क्या होगा cos A cos B माइनस साइन A sin B। देखो in case of cos both are cos and both are sin। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। जे माइनस है तो प्लस आ जाना, ये प्लस है तो माइनस। इदा ही tan A plus B का फॉर्मूला क्या होगा tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। प्लस है तो सामने प्लस, ये माइनस आ गया तो सामने माइनस, तो ओवर च प्लस। ये कुछ फॉर्मूले ने सब तो इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ 75 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 90 - 15 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 45 + 30। इदा ही cos 75 की वैल्यू फाइंड करो, tan 75 की वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर tan 15 की वैल्यू फाइंड करो। जे ये तीनों पता लग जाए साइन cos tan, इन्हों के रेसिप्रोकल करके सीकेंड को सीकेंड वो भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। मैं फिर एक बार तुहानू रिक्वेस्ट कराँगा कि सारे बच्चे प्रॉपर वे दे नाल लैक्चर नोट डाउन करया करो, फिर ही तुहानू बेनिफिट होएगा पढ़ाई का। ओके, थैंक यू वेरी मच।